Before the formal beginning of the program, I have a small short news for all the audience who have joined us. On behalf of Sky, I am very much happy to inform you that tomorrow will be a delightful session. On behalf of Sky, there will be two sessions hosted by the Sky Foundation platform. One at 11:30 in the morning, as we had promised you regarding the cyber security. And the second session that shall be hosted by Sky is again a very special session on the solar eclipses by the acclaimed scientist Dr. Bharat Adur, who shall be addressing us in the evening at our stipulated time of 7 p.m. in the evening. तो इससे पहले कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है एक फॉर्मल बिगिनिंग को प्राप्त हो और स्वप्निल रस्तोगी जी जो है प्रोग्राम की शुरुआत करें, मैं अमितांशु वाजपेयी आप सभी को छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा जो श्रोता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कि कल जो है हमारा स्काई प्लेटफॉर्म दो सेशंस को होस्ट करेगा। प्रातः की बेला में 11:30 बजे के सेशन जो है, जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, 11:30 बजे हमारे साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट आज के इस डिजिटल दौर में आप सभी लोगों को प्रेरित करेंगे और सूचित करेंगे कि किस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है और क्या डूज और डोंट्स हैं। भरत राज भूसाल जी आपको संबोधित करेंगे और सायंकाल के सत्र में 7 बजे एक विशिष्ट सेशन है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक डॉक्टर भरत दूर, डायरेक्टर आकाश गंगा सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी मुंबई, सायंकाल के सत्र में जुड़ेंगे और आप सभी से मेरा निवेदन है कि कल के दोनों सत्रों का आनंद उठाएं और अपने ज्ञान और ज्ञानवर्धन कर एक नई नई जानकारियों से अपने मन मस्तिष्क को और भी जो है उसको एक्सपेंड करें। ओवर टू यू स्वप्निल जी। आई सपोज वी आर एट 7:25, 7:25 हो रहा है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और आज की स्टेज अपने आज के होस्ट स्वप्निल रस्तोगी जी का स्वागत करते हुए उनको हैंड ओवर करता हूँ। डिजिटल राउंड ऑफ अपलॉड फॉर स्वप्निल रस्तोगी। ओवर टू यू। Thank you, Mr. Amitanshu. And I would like to thank you on the behalf of to Sky Foundation, who gave me an opportunity to host the today's session. And as I can see, our like participants and the speaker for the day already onboarded. So, without wasting any much time, I would like to tell something about today's session, what we are going to discuss as a part of Astronomy Delight series. So, as we already know that Earth continues to orbit around the Sun in an ever continuous merry-go-round, thereby presenting before us the beautiful revelations of creations of nature in the form of night sky. As the Earth moves on her roundabout journey around the Sun and approaches the summers of June 2020 in the Northern Hemisphere, we present before you the star-studded spectacles of night sky with garlands of constellations, gems of planets, and comets embracing the celestial sphere's neck. Today's Astronomy Delight episode by Sky Foundation in collaboration with the Whipnet Clubs, Ignited Mind Whipnet Club, Skyak Whipnet Club, WLS Whipnet Club, and our global initiative, Adustem Initiative Global, brings to you the session on Night Sky of June 2020. Looking forward to all for a mesmerizing journey to the cosmic frontiers by the speaker, Mr. Sumit Kumar Srivastav, Scientific Officer, Indira Gandhi Planetarium, who will be delivering his talk on enjoying night sky objects and events of June 2020. Now, a brief introduction of Mr. Sumit Kumar Srivastav will be given by by my co-host of the day, Mr. Shubhan, who will be telling you more about Mr. Sumit Kumar Srivastav. So, over to you, Mr. Shubhan. Thank you. Thanks a lot, Mr. Swapnil ji. And now, as we all know, that night sky always astonishes us since the ancient times, and many of us find interest in looking at the night sky and observing it. But as it's said, without the proper knowledge, you can't be perfect. As the month of June is very special to all the astronomy enthusiasts because we had observed the penumbral lunar eclipse last night and the annular solar eclipse, also conjunction of Moon and Venus, and also not to forget the launch of SpaceX Crew Dragon module under the NASA's Launch America program on the last day of May filled all of us with joy and left many of us with questions about international space stations. So there is a lot of questions and seek for knowledge in our mind.
to answer all our questions. Now I welcome to the today's talk Mr. Sumit Kumar Srivastava ji, Scientific Officer of Indira Gandhi Planetarium, Lucknow, Council of Science and Technology, UP, under the Department of Science and Technology, Uttar Pradesh. He has more than 13 years of experience in handling telescopes and organizing astronomical outreach events. A research scholar in astronomy, he is the mentor of the Astronomical Club of Uttar Pradesh, named as Uttar Pradesh Mature Astronomers Club and spelled as UPAC since 2011, to which currently 900 plus active members are associated. He is also a lifetime member of Awadh Vigyan Bharati, UP Amateur Astronomers Club and Indian Science Congress. I welcome Mr. Sumit Srivastava sir on board to give us a knowledgeable talk. Before okay, thank you. Before proceeding the final session of the day by Mr. Sumit Kumar Srivastava, I would like to give some instructions to our all participants. कृपया जब भी टॉक के दौरान अपना माइक को बिल्कुल म्यूट पे रखें, जिससे कि हमारे स्पीकर जो बात कर रहे हैं उनसे उनको प्रॉब्लम ना हो, और इससे हमारे श्रोताओं को भी दिक्कत हो सकती है. सो काइंडली टर्न ऑफ योर माइक during the session, and please don't present your screen during the session. Also, you have seen the two icons named as Sumit Kumar Srivastava. One is Sumit Kumar Srivastava addressing himself, and the other point is his presentation screen. So kindly pin the presentation screen on Sumit Kumar Srivastava so that you can able to see the presentation screen. Without wasting any much time, I welcome again Mr. Sumit Kumar Srivastava to grace the session of today's session of Night Sky Watching. I hope you will definitely enjoy the session. Thank you. Welcome, Mr. Sumit sir. Thank you. थैंक यू स्वप्निल. जितने भी लोग नाइट स्काई वॉच का ये जून 2020 का जो सेशन है, इसके लिए जो भी इस गूगल हैंगआउट मंच पे हैं, उन सभी का धन्यवाद. और जैसा मैं देख रहा हूँ, इसमें मेरे सीनियर भी हैं, डॉक्टर श्री शांख्यायन सर. अगर मुझे सुन रहे हो तो गुड इवनिंग सर. तो नाइट स्काई वॉचिंग जून 2020 का सेशन इसलिए हम लोगों ने रखा है क्योंकि इसमें पहली बात तो जून में हमें बहुत ही दो बड़े सेलेस्टियल इवेंट्स मिलने वाले हैं. मतलब एक हो चुका है, दूसरा होने वाला है. कल हमारा पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स था और काफी मौसम खराब होने के बाद भी कई जगहों से उसको देखा गया. और हमारा जो दूसरा बड़ा सेलेस्टियल इवेंट है वो है हमारा एनुलर ऑब्लिक पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जो कि वो भी हमें मतलब जितनी भी ऑल ओवर थ्रू इंडिया ये देखा जा सकेगा, लेकिन पार्शियल रूप में. कुछ जगह हैं जहां पे उसको हम एनुलर फॉर्म में भी देख सकेंगे. तो लेकिन इसके अलावा भी नाइट स्काई का मैंने जब हम लोगों ने अप्रैल से सेशन चालू किए हैं, वो इसलिए कि आप लोग नाइट स्काई को पहचान सकें, उसको उसके ब्राइट स्टार्स को पहचान सकें. और जो सबसे ज्यादा ब्राइट हमारा ISS है, ISS फ्लाईबाय को आप देख सकें, वो कहाँ से उसकी मतलब उसकी अपडेट्स आपको कैसे मिलेंगी, उसके बारे में आपको पता चल सके. और मिटियोर शार्स हर महीने होती हैं, तो कौन सी मिटियोर शार कब होने वाली है और कब उसको हम देख सकते हैं. इसके अलावा कुछ ब्राइट स्टार्स जो कि हर महीने चेंज होते रहते हैं और उनके कॉन्स्टेलेशंस. बहुत ही ब्रीफ में हम लोग चलेंगे क्योंकि काफी ज्यादा चीजें होती हैं. और मतलब कोई भी क्वेरी होगी देन आई विल रिप्लाई. आप लोग अगर कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में भी इसको कर सकते हैं. मेरा दूसरा एक आइकॉन है सुमित कुमार श्रीवास्तव, मैंने लैपटॉप से ऑन कर रखा है, उस पे मेरी पीपीटी है. उस पे आप उसके एरो पे क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी माय प्रेजेंटेशन. ओके, सो मूविंग टू फर्स्ट स्लाइड. द नाइट स्काई ऑफ जून 2020. इसमें अगर हम लोग प्लैनेट्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट प्लैनेट्स, देन वी आर एबल टू सी मार्स, मरकरी, सैटर्न एंड जुपिटर. एंड हमको पता है कि 3 जून को इंफीरियर कंजंक्शन था वीनस का सन के साथ में. तो इस वक्त वो सन के साथ ही वीनस है, जिस वजह से हमको हम उसे नहीं देख सकते. आफ्टर 15th of June Venus will be visible, but in the month of July you can see the Venus again. सेकेंड थिंग, मिटियोर शार. एक मिटियोर शार हमको इसमें मिल सकती है, वो है जून बूटस कॉन्स्टेलेशन में ये मिटियोर शार होती है, इसी वजह से उसको बूटेट्स मिटियोर शार बोलते हैं.
ये 22 जून से लेके 3 जुलाई के बीच में चलेगी। 27 जून को ये मैक्सिमम पे होगी, जिसमें 0 से लेके 100 मेटियोर्स भी आप देख सकेंगे। ISS फ्लाई बाय स्टार्स, जैसा मैंने पहले ही कहा कि 8 से 10 स्टार्स हम लोग ले गए हैं, उसमें जो काफी ज्यादा ब्राइट स्टार्स होंगे आपके नाइट स्काई में, जिन्हें आप आसानी से पहचान सको। उसके बाद में जो हमारे हम लोग जो उसमें नाइट स्काई चार्ट देते हैं, वो इनकी सहायता, जो ब्राइट स्टार्स हैं इनकी सहायता से आप जो हल्के स्टार्स हैं, जो फेंट स्टार्स हैं, यू कैन ऑल्सो वॉच देम, और आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और अगेन समर ट्रायंगल एंड विंटर ट्रायंगल, धीरे धीरे समर ट्रायंगल का टाइम बढ़ता जा रहा है। इस वक्त समर ट्रायंगल आपको 9:30 पौने 10 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा, और स्प्रिंग ट्रायंगल हमारे जेनिथ पे, हम ईस्ट से राइज करके हमारे जेनिथ पे हमें उस समय तक पहुंच चुका होता है। सो दिस इज द नाइट स्काई मैप। ये मैंने लखनऊ के लिए ड्रॉ किया है। अगर अगर कहते हैं अगर आपको अपना खुद का मैप बनाना है तो आप स्टेलियम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। स्टेलियम पे आप आसानी से किसी भी प्लेस के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पुट करके आप आसानी से उसका जो नाइट स्काई मैप है वो निकाल सकते हैं। सो we start from the best celestial event of June 2020. The first event was penumbral lunar eclipse, जो कि 5 और 6 जून के बीच में था। 5 तारीख को ये रात में 11:15 से स्टार्ट हुआ था और जब लगभग 2:34 तक चला था। इसका मैक्सिमम 12:42 के आसपास था। क्योंकि पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स के बारे में मैंने एक स्पेशल टॉक रखी थी, उसमें मैंने काफी बताया था कि लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं, पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स क्या है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रा एंड पेनम्बरा शैडोज। सो क्योंकि इवेंट बीत चुका है, सो इस पर टॉक नहीं हम लोग करेंगे। और एक इवेंट जो और आने वाला है उसका नाम है द एनुलर सोलर इक्लिप्स, और इस पे एक स्पेशल टॉक स्काई ने रख रखी है ऑन 7th of June 2020 स्काई गूगल हैंगआउट चैनल पे। उस पे डॉक्टर भरत अरूर सर, जो कि AGCA के डायरेक्टर भी हैं, उनका स्पेशल टॉक है। तो इस पे भी मतलब मैंने इसको पहले सोचा कि इस पे प्रेजेंटेशन करूं, लेकिन आफ्टर दैट टॉक मैं इसको भी प्रेजेंट करूंगा। तभी एक ही स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। अगर आप सामने देखेंगे तो अगर इफ यू टॉक अबाउट यूपी, फॉर यूपी पर्सन्स, देन देयर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट नेम्ड एज सहारनपुर। सहारनपुर एक इकलौता ऐसा जिला है जहां पे आपको एनुलरिटी मिल रही है। इसके अलावा आपको अगर एनुलरिटी देखनी है यूपी के आसपास, देन यू हैव टू गो टू देहरादून इन उत्तराखंड, और हरियाणा और राजस्थान। सो let's start from the another celestial events. The first thing on 7th of June means tomorrow on tomorrow evening on 7th of June, Jupiter, Saturn and Moon will be in a straight line from 9:48 p.m. Best seen time about 11 p.m. to whole night. Means अगर कल रात अगर आप देखेंगे तो जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और मून चंद्रमा हमारी एक सीधी रेखा में देखते हुए हमें मिलेंगे। इस पे आप देखें, मैंने ये जो स्क्रीनशॉट लिया ये भी स्टेलियम से लिया हुआ है, और जो ये एक पिंक कलर की लाइन है, दैट मीन्स इस लाइन के रूप में आपको वो इसी सीध में दिखेंगे। 9:48 p.m. मैंने इसलिए रखा है बिकॉज 9:48 p.m. इज द राइजिंग टाइम ऑफ सैटर्न। सो बट द बेस्ट टाइमिंग टू सी दिस इवेंट, यू हैव टू वेट टिल 11 p.m. 11 बजे के आसपास ये आपको होराइजन से काफी ऊपर आ चुका होगा। तो इस वजह से तीनों प्लैनेट ये तीनों सेलेस्टियल बॉडीज एक सीध में आपको नजर आएंगी। On 8th of June, there is a conjunction of Moon and Jupiter. मून और जुपिटर अभी लगातार जब से जुपिटर का पिछले साल से जब से जुपिटर हमारे नाइट स्काई में विजिबल है, तब से हमें हर महीने जुपिटर का मून के साथ में लगभग हर महीने जुपिटर का मून के साथ कंजंक्शन मिल रहा है, मून का सैटर्न के साथ कंजंक्शन मिल रहा है। तो इस महीने भी जो हमारा मून और जुपिटर कंजंक्शन है वो हमें मिलेगा, और ये होराइजन से दिखना स्टार्ट हो जाएगा लगभग 9:44 पे, और इसका भी बेस्ट टाइम ऑफ व्यूइंग है लगभग 11:30 बजे। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसको शो करता है कि सैटर्न इसके एक पॉइंट पे होगा, जुपिटर दूसरे पॉइंट पे, और जो लास्ट वन होगा उस पॉइंट पे आपका मून हम देख सकेंगे।
जिसको भी सैटर्न या जुपिटर देखने में थोड़ी भी दिक्कत हो या फिर उसको पहचाने में दिक्कत हो, तो वो जब 8 तारीख की रात में अगर आप इसको वॉच करेंगे, देन यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज जुपिटर एंड सैटर्न। और उसके बाद आप लगातार रातों में जब आप देखेंगे तो आप आसानी से जुपिटर और सैटर्न को भी पहचान सकेंगे। इसके जस्ट अगले दिन हमारा 9 तारीख को कंजंक्शन, 9 तारीख को ये अगेन मून जुपिटर एंड सैटर्न स्ट्रेट लाइन में होंगे, बट डिफरेंस ये होगा कि पिछली बार जुपिटर के आगे मून था, इस बार जुपिटर से पहले मून होगा। इसमें भी आप देखोगे कि मैंने लिखा है कैन बी सीन फ्रॉम 10:25 PM बिकॉज 10:25 इज अ राइजिंग टाइम ऑफ मून। दैट मीन्स फ्रॉम 10:25 this whole event we can see, and the best time to see this near about 12:15 AM. And again, the next conjunction, the conjunction of Mars and Moon on 30th of June 2020 can be seen from 12:27 to dawn. मीन्स 13 तारीख को ये हमें कंजंक्शन ऑफ मार्स और मून हमें मिलेगा, और इसको अगर हमें अपने फोटोग्राफ, अपने वाइड लेंस कैमरे DSLR में अगर हमें इसकी फोटोज क्लिक करनी है, तो उसके लिए बेस्ट टाइमिंग जो रहेगी वो 2 बजे, रात में 2 बजे से लेके भोर के 4 बजे तक होगी। अगेन चलिए हम लोग चलते हैं प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स की बात करें तो इस वक्त हमें जो सबसे कुछ दिन पहले तक वेस्ट स्काई में हमें सबसे ज्यादा जो चीज हमें मिलती थी वो थी वीनस। अब चूंकि वीनस लिट ऑफ हो चुका है, तो इस वक्त हमारे पास सेलेस्टियल बॉडी वेस्ट साइड को वेस्ट साइड में है, उसको हम बोलते हैं, उसका नाम है मरकरी। एंड इट इज अगेन this is another celestial body which is known as a morning star and evening star, but not as bright as Venus. Mercury is visible as an evening object, has recently passed greatest elongation east from Lucknow and its conjunction. मरकरी की जो हमें मरकरी का जो इंफीरियर कंजंक्शन है वो हमें मिलेगा लगभग 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मरकरी का इंफीरियर कंजंक्शन, दैट मीन्स कि हमारे पास ये जून का पूरा मंथ है जिसमें हम मरकरी को वेस्ट साइड में देख सकेंगे। सनसेट होने के बाद में लगभग 1.5 घंटे तक हमें मरकरी होराइजन से ऊपर नाइट स्काई में चमकता हुआ दिखाई देता है। और 3 अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो हमें नाइट स्काई में विजिबल हैं। एक है मार्स, सेकंड वन सैटर्न एंड जुपिटर। क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे पहले जुपिटर से चलते हैं। जुपिटर इज करेंटली अप्रोचिंग पोजीशन इज विजिबल एज अ मॉर्निंग ऑब्जेक्ट, और जुपिटर को अगर हमें देखना है तो रात में लगभग 10:20, 10:30 बजे के आसपास से जुपिटर हमारा होराइजन पे आता है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हमें जुपिटर राइज करता हुआ मिलता है। और इसी तरीके से सैटर्न भी हमारा एक सेकंड ऑब्जेक्ट है जो कि लगभग रात में 11 बजे के आसपास राइज कर रहा है, और पूरा जून आपको नाइट स्काई में ये लगातार पूरी थ्रू आउट द नाइट स्काई आफ्टर 11 PM ये आपको मिलेगा। थर्ड जो तीसरी सेलेस्टियल बॉडी है वो है मार्स, द रेड प्लैनेट, और वो भी हमें एक मॉर्निंग ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, और इट इज विजिबल इन डॉन स्काई में। जो इसका राइजिंग टाइम है वो रात में 12:32 है, और धीरे धीरे ये घटता जा रहा है, लेकिन तब भी ये ऑब्जेक्ट भी आपको पूरे जून देखने को मिलेगा, और ये भी पूरे रात में 12:32 से राइज करके ये थ्रू आउट द सुबह भोर तक ये आपको दिखाई देगा। ये एक स्क्रीनशॉट लिया है जिस समय हमारा मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर रात में लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का स्क्रीनशॉट है ये, तो जिसमें आप देख सकेंगे कि मून, ये 7 तारीख का है, कि इसमें मून, जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स सारे विजिबल हैं। और अगर आप 7 तारीख को नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन करेंगे रात में लगभग 2-2:30 बजे, इफ यू अर्ली राइजर, देन यू कैन सी द सैटर्न, जुपिटर एंड मून एंड मार्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ अब हम चलते हैं स्टार्स पे। स्टार्स जैसा कि पहले इससे कुछ जब हम लोग पहले देख रहे थे तो हमारे नाइट स्काई में सबसे ज्यादा एम्पल तरीके से जो चमक रहा था वो एक कॉन्स्टेलेशन था, ओरियन कॉन्स्टेलेशन। सेकंड वन कैनिस मेजोरिस, कैनिस माइनोरिस,
सो बट इस वक्त वो सारे जितने भी स्टार्स हैं ओरेगा वगैरह, ये सारे 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 कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो वेस्ट में छिप चुके हैं। जो ये वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो अप्रैल और मई के महीने में जैसे ही शाम होती थी आपके पूरे वेस्ट स्काई को ब्राइट स्टार से फिल कर देते थे। नाउ इस समय जो हमें सबसे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट, जो सबसे पहला ब्राइट ऑब्जेक्ट हमने लिया है वो है एंटारस। इसको लेने का एक रीजन भी है क्योंकि हर स्टार की, हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी खुद की कहानी होती है। मैंने कभी भी किसी माइथोलॉजिकल कहानी को पुट नहीं किया। मैं उसका नाम जरूर हिंदी में बताता हूँ, लेकिन इसकी कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसको पुट किया। सबसे पहले पहला स्टार इसको लेते हुए मैंने इसकी कहानी को भी पुट किया। एंटारस का जो राइजिंग टाइम है वो 6:12 पे है। शाम को 6 बजे ये राइज करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, और सुबह 4:30 बजे तक ये लगभग पूरे थ्रू आउट द नाइट स्काई रहता है। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट इसका मूवमेंट है। सो और जो एंटारस है, एंटारस इज अल्फा स्कॉर्पी। ये स्कॉर्पियन तारामंडल यानी स्कॉर्पियन कॉन्स्टेलेशन का सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है। और स्कॉर्पियन तारामंडल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वृश्चिक तारामंडल। ये हमारी एक राशि चक्र की राशि चक्र का तारामंडल भी है। और इसके पीछे जो दंत कथा है वो ये है कि एक ओरियन नाम का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको ओरियन नाम का एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग शिकारी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और उसको सजा देने के लिए और उसको गॉडेस आर्टेमिस की डिसरिस्पेक्ट के लिए उसको मारने के लिए एक जानवर भेजा गया अर्थ पे। और बहुत ज्यादा फाइट होने के बाद में उसने उस शिकारी को मार दिया, उसके दोनों कुत्तों को मारा। दैट इज द माइथोलॉजिकल स्टोरी। बट जो भी वो वाइल्ड एनिमल भेजा गया था वो था आपका स्कॉर्पियन, और उसके इस ब्रेव इवेंट के लिए उसको हेवंस में, नाइट स्काई में उसको जगह मिली, और पूरी पूरी तरीके से उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन उसके नाम पे हुआ। दैट इज द स्कॉर्पियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो उसका सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है उसको हम लोग बोलते हैं एंटारस। एंटारस एक रेड कलर का स्टार है। जैसे ही आप रात में शाम होगी आप इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता हुआ पाएंगे। रात में लगभग 8 बजे तक ये होराइजन से काफी ऊपर आ चुका होता है, तो इसे पहचानना काफी इजी होता है। और जो एंटारस के स्टार के ठीक ऊपर आपको आर्चरस मिलेगा। आर्चरस के दाहिनी तरफ साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन के बीच में स्पाइका, और स्पाइका के जस्ट अपोजिट आपको वेगा। तो जिस तरीके से हम लोग वेस्ट स्काई को देख रहे थे, इस समय अगर आप देखेंगे तो ईस्ट और साउथ डायरेक्शन के बीच की स्काई में हमें 4 प्रॉम्प्ट स्टार्स मिलेंगे, जिसमें वेगा है, आर्चरस है, स्पाइका है और एंटारस होगा। नाउ सेकंड वन, द डेनब एंड अल्टेयर। डेनब एक स्टार है जिसको ब्राइटेस्ट स्टार है सिग्नस का। सिग्नस एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको पता है कि हमारे 88 कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्राइट कॉन्स्टिट्यूशन हैं, और हिंदी में सिग्नस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं हंस तारामंडल। और ये नाइट स्काई में 19वां सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार होता है। और हिंदी में अल्टेयर को हिंदी में डेनब तारे को हम लोग हंस तारा या हंसा तारा भी कहते हैं। द सेकेंड वन इज अल्टेयर। इसको हम लोग ईगल स्टार के नाम से भी जानते हैं। और हमको ये पता है कि अल्टेयर इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ कॉन्स्टलेशन एक्विला। एक्विला को अगर अरबी में बात करें तो इसका मतलब होता है उड़ता हुआ चील। और अगर हम इसके कॉन्स्टेलेशन अगर हम स्टेरियम पे इसका कॉन्स्टेलेशन की कॉन्स्टेलेशन आर्ट्स को अगर ऑन करते हैं, देन हम इसमें देखते हैं कि एक उड़ती हुई चिड़िया जैसी आपको इसमें नजर आएगी। हिंदी में एक्विला तारामंडल को हम लोग गरुण तारामंडल के नाम से भी जानते हैं। और अल्टेयर जो इसका सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है उसका नाम है श्रवण तारा, जो कि एक हिंदू दंत कथा जिसमें श्रवण कुमार थे उनके नाम पे इसको रखा गया है। और इसमें काफी इंपॉर्टेंट बात है कि वेगा, डेनब और अल्टेयर ये तीनों आपस में मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं, जिसे हम लोग समर ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। समर जो समर है जून और जुलाई, मिड ऑफ जून से जुलाई के बीच में ये समर ट्राइंगल हमारा ईस्ट से राइज, शाम होते ही ईस्ट से राइज करने लगेगा। नाउ द अगेन पोलारिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार इफ यू हैव टेलीस्कोप। अगर आपके पास कोई टेलीस्कोप है या मैनुअल माउंट है हो या फिर रोबोटिक माउंट हो, अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है वो होता है पोलारिस। क्योंकि पोलारिस ही वो स्टार है जिससे हम लोग अपना
सेलेस्टियल नॉर्थ को मेजर करते हैं। और इट इज नोन एज अ पोल स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन को हम लोग सप्तऋषि तारा मंडल भी कहते हैं, और ये एक बहुत ही फेमस तारा है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं ध्रुव तारा ऑफ सप्तऋषि तारा मंडल, और ये हमेशा नॉर्थ में पाया जाता है। ये काफी ये काफी अजीब बात है कि एंटारस भी किसी समय हमारा नॉर्थ पोल का काम करता था। इस समय जो हमारा नॉर्थ पोल है वो पोलैरिस पे है। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर डिपेंडेंट ऑन लैटिट्यूड ऑफ पोलर स्टार्स। और जितनी भी हमारा एस्ट्रोनॉमी में अगर हम किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 3 तरह के सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक हमारा आल्ट अजीमथ होता है, मतलब एक हमारा हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दूसरा हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और तीसरा हमारा इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो इक्लिप्टिक पे वर्क करता है। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके लिए ये पूरी तरीके से हम लोग पोल स्टार पे डिपेंडेंट हैं। और जब भी हम किसी भी नाइट स्काई को, मूनलेस नाइट स्काई को मेजर करते हैं या टेलीस्कोप से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं तो हमारे लिए पोल स्टार का देखना बहुत जरूरी होता है। और पोल स्टार को देखने के लिए हमें सबसे पहले सप्तऋषि तारामंडल को ढूंढना होता है, और सप्तऋषि तारामंडल का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है पोल स्टार या पोलैरिस। नाउ वेगा। वेगा इज अ ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ कॉन्स्टेलेशन लायरा। कॉन्स्टेलेशन लायरा का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वेगा, और इसके राइजिंग टाइम लगभग 5:43 यानी कि 5:45 के आसपास ही हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से राइज कर जाता है। वेगा के जस्ट नीचे आपका एंटारस है, जैसे कि सबसे ऊपर वाली पिक में मैंने दिखाया था। इट इज अ प्रोमिनेंट स्टार फ्रॉम अप्रैल नाइट स्काई आफ्टर 9 PM इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और अप्रैल से लेके अब तक ये लगातार हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिल रहा है। धीरे 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 ये हमें जेनिथ की ओर चलता हुआ मिलेगा। और हिंदी में इस तारे को हम लोग अभिजीत तारा भी बोलते हैं। इसकी दूरी जो है वो लगभग 25 लाइट ईयर्स है हमसे। और वेगा कॉन्स्टेलेशन इसलिए भी फेमस है क्योंकि एक काफी मेटियोर शार का ये डायरेक्शन भी बताता है, अप्रैल की मेटियोर शार का। दैट्स वाई कि वेगा फेमस भी है। तो अभिजीत तारा वेगा को हिंदी में इसका जो नाम है वो है अभिजीत तारा। नाउ द नेक्स्ट वन इज नोन एज अ रेगुलस। रेगुलस इज अ ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ कॉन्स्टेलेशन लियो। कॉन्स्टेलेशन लियो को हम लोग हिंदी में सिंह राशि या सिंह तारा मंडल भी बोलते हैं। और ये भी एक हमारा जो 12 राशि चक्रों की राशियां हैं उनमें से एक है। और हिंदी में इसे मघा तारा भी बोलते हैं, सिंह राशि का। और ये अप्रैल से ही ये लगातार हमको दिख रहा था। रेगुलस है, पोलेक्स है, प्रोसियन है। इस वक्त प्रोसियन और पोलेक्स पूरी तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में जैसे ही सनसेट होता है उसके साथ ही नीचे आ चुके होते हैं। वो जेनिथ के इतने करीब होते हैं कि हमको प्रोसियन और पोलेक्स कैपेला वगैरह दिखना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन रेगुलस हम अभी भी देख सकते हैं। और रेगुलस की जो डायरेक्शन है वो है हमारी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नियर अबाउट वेस्ट पे ये आपको राइज करता हुआ मिलेगा। अगेन हमारे पास फिर आते हैं स्प्रिंग ट्राइंगल के स्टार्स जो कि हैं रेगुलस, स्पाइका एंड आर्चरस। रेगुलस और स्पाइका, रेगुलस के बारे में हमने बताया। द सेकंड वन इज नोन एज स्पाइका। स्पाइका इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ कॉन्स्टेलेशन विर्गो। विर्गो भी एक हमारी जो हिंदी मैथोलॉजी है उसके हिसाब से राशि चक्र की तारामंडल है। और इट हैज अ लियो कॉन्स्टेलेशन ऑलवेज इन वेस्ट। जो हमारा विर्गो तारामंडल होता है उसके जस्ट उसके पश्चिम दिशा में हमें हमेशा सिंह तारामंडल मिलेगा। और हिंदी में जो विर्गो को हम लोग चित्रा तारामंडल या कन्या तारामंडल भी कहते हैं। और हिंदी में इस तारामंडल को हम लोग कन्या तारामंडल या कन्या राशि भी बोलते हैं। और जो इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है जिसको हम इंग्लिश में स्पाइका बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चित्रा तारा। और स्पाइका को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, जब भी आप नाइट स्काई में स्टार्स को ढूंढ रहे होंगे तो रेगुलस अगर आप पहचानें तो रेगुलस के नीचे ब्लू स्टार जो होगा वो हमारा स्पाइका होगा। स्पाइका का ब्लू कलर एकदम डिफरेंट है, वो आपको देखते ही आप समझ जाएंगे कि दिस इज ए स्पाइका।
और वो अपने आसपास के बाकी जितने भी स्टार्स हैं उनसे काफी ज्यादा ब्राइट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्चरस। आर्चरस जो स्टार है वो हमारा कॉन्स्टलेशन बूटस का सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, और इट इज नोन एज अ स्वाति तारा ऑफ ग्वाला तारा मंडल। आर्चरस का जो हिंदी में नाम है उसको हम बोलते हैं स्वाति। स्वाति नक्षत्र जिसको बोलते हैं वही स्वाति तारा है, और इसका जो तारामंडल है आर्चरस का, बूटस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ग्वाला तारामंडल, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये हमें मिलता है। स्प्रिंग ट्रायंगल इस वक्त हमको जैसी इवनिंग स्काई होता है तो हमें ये इवनिंग स्काई में काफी ऊपर राइज किए हुए मिलता है, और जैसे जैसे हमारा समर ट्रायंगल ऊपर आता है वैसे वैसे ये हमें जेनिथ पे मिलेगा। तो आर्चरस, स्पाइकर और रेगुलस इसको हम लोग ईस्ट डायरेक्शन के होराइजन पे देख सकेंगे। ईस्ट डायरेक्शन के जेनिथ से कुछ नीचे आप इसको पा सकेंगे, और ये हमेशा ये जो तीनों स्टार्स हैं ये तीनों मिलके आपस में एक स्प्रिंग ट्रायंगल बनाते हैं। नाउ द समर ट्रायंगल। समर ट्रायंगल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे समर करीब में आएगा वैसे वैसे ये समर ट्रायंगल हमारा नाइट स्काई में ईस्ट डायरेक्शन से राइज करने लगेगा, और अल्टियर, वेगा, डेनर ये तीनों मिलके आपस में एक समर ट्रायंगल मेजर बनाते हैं। और लगभग 8:46 इस समय जो इसका राइजिंग टाइम है समर ट्रायंगल का, वो 8:46 शाम को है, और जैसे जैसे हमारा समर मिड ऑफ जून आएगा ये हमारा सनसेट के आसपास पहुंच जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ISS फ्लाईबाय। ISS इसका जितने भी हम लोगों ने नाइट स्काई ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं तो उसमें हम लोग ISS को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ISS एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो कि अभी यूएस ने अभी अभी कहते हैं स्पेसएक्स के साथ में मिलके अपने ह्यूमन मिशन को भेजा है। इससे पहले यूएस डिपेंडेंट था रशिया और यूरोपियन एजेंसीज के ऊपर। तो वो जो स्पेसएक्स ने जितने भी अपने यान भेजे जो उसको फीड करने के लिए जाते थे, लेकिन ये स्पेसएक्स का पहला मिशन है जो ह्यूमन को लेके गया। दैट्स वाई कि ISS फ्लाईबाय लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और लोग इसको देखना, इसको जब भी वो आसमान में निकलता है तो उसको फ्लाईबाय को चेक करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट साइट एक है spot.station.nasa.gov। आप इस वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे ही आप अपनी लोकेशन डालते हैं तो आपको उस रात में, मतलब उस पूरे मंथ के जो ISS फ्लाईबाय आपके लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के ऊपर से हैं वो आपको मिल जाते हैं। ISS हमें इसलिए भी ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है वो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है, जबकि एक नॉर्मल एरोप्लेन की जो स्पीड होती है वो 980 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब ISS को हम नाइट स्काई में देखते हैं तो ये एक फास्ट मूविंग स्टार के रूप में दिखाई देता है। अगेन मैं इसको रिपीट करूंगा, spot.station.nasa.gov। इसको अगर जब आप नेट पे सर्च करेंगे स्पॉट द स्टेशन भी अगर आप गूगल पे डालेंगे तो ये वेबसाइट आपको मिलेगी, और इस पे जो भी टाइमिंग दी होगी वो काफी ज्यादा ऑथेंटिक होगी विद रिस्पेक्ट टू जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे कई गुना ज्यादा। द नेक्स्ट वन इज मैंने ये ISS के कुछ डाटा निकाला है, ये मैंने उसी वेबसाइट से निकाल के रखा हुआ है। ये लखनऊ का डाटा है, और किसी भी प्लेस का डाटा जिस प्लेस के लिए हमने मेजरमेंट लिए हैं उसके आसपास 80 किलोमीटर के रेडियस के लिए ही वैलिड होता है। अगर आप अपने प्लेस का एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हैं और अगर आप उससे अपना डाटा मेजर करते हैं तो वो डाटा आपके 80 किलोमीटर के लैटिट्यूड 80 किलोमीटर के दायरे के रेंज में वो वैलिड रहेगा। तो हमारा जो ISS है वो लगभग 7 तारीख को 2 मिनट के लिए हमको दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये होराइजन के काफी करीब में होगा, और ये लगभग 8:36 शाम को। उसी तरीके से 8 जून को ये 7:49 पे मिलेगा, लेकिन ये हमें देखने में आसानी होगी क्योंकि 4 मिनट का इसका विजिबिलिटी है और लगभग इसकी हाइट भी 40 डिग्री के आसपास है। और इसी तरीके से हमें 10 जून का हमें है जो 1 मिनट से भी कम समय के लिए होगा और नियर अबाउट होराइजन होगा। तो 10 जून का तो ये मान के चलिए कि इसको बहुत ही कम लोग देख पाएंगे। तो जो हमें डाटा मिला था वो फ्रॉम 1 जून से लेकर 10 जून के बीच का था। जैसे जैसे डेट बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे डाटा अपडेट होता जाता है। अब हम लोग आते हैं मीटियोर शार पे। जून की मीटियोर शार हमारे पास है, इतनी सारी मीटियोर शार है जिसमें ZHR रेट
किसी में 50 है, 1 से 72 है, 10 है, 2 है, 0 से 5 है। जिसमें देखेंगे सबसे ज्यादा जो इसका रेट है मिटियोर्स का वो है जून, जो बूटस कॉन्सेशन में जो मिटियोर्स है हमारी जून बूटेट्स, उसमें 0 से लेके 100 मिटियोर्स तक आप इसको देख सकते हैं। और ये 27 जून को इसका पीक मिलेगा हमें। इस वजह से मैंने इस मिटियोर शावर को इसमें रखा हुआ है। और जो 27 जून है उस समय जो मिटियोर आप देखेंगे तो मूनलेस मूनलेस नाइट भी होगी, मूनलेस नाइट भी आपको मिलेगी। इस वजह से आप मिटियोर्स को आराम से देख भी पाएंगे। और 22 जून से ये स्टार्ट है, तो जून बुटेट्स जो मिटियोर्स आ रहे हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जो जून मिटियोर शायर है, जून बुटिस मिटियोर शायर है, वो 22 जून से स्टार्ट है और 2 जुलाई तक रहेगी। थ्रू आउट द नाइट स्काई आपको 27 जून को मिलेगा। इस पूरे जो ड्यूरेशन है, ये मिटियोर शायर का जो रेडियंट पॉइंट है, जहां से हमें मिटियोर्स अपनी तरफ गिरते हुए या अपनी तरफ आते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो होगा कॉन्स्टेलेशन बूटस। और लखनऊ, द रेडियंट पॉइंट इज अबव द होराइजन ऑल नाइट। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पे आप पूरी रात आप इसको मिटियोर को देख सकेंगे। और आप थ्रू आउट, क्योंकि जो भी मूनलेस नाइट्स होंगी उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो नाइट स्काई है उसमें आपको मिटियोर्स नजर आएंगे। रेडियंट पॉइंट बिफोर द नाइट फॉर 9 बजे से है IST, एंड सो द शो इज लाइकली प्रोड्यूस इट्स बेस्ट डिस्प्ले सून ऑफ द डस्क। शाम होने के तुरंत बाद आपको रेडियंट पॉइंट यानी कि हमारे बूटस कॉन्स्टेलेशन से मिटियोर्स आते हुए नजर आएंगे। और जो शावर की जो पीक है वो लगभग 27 जून को रात में 10 बजे के आसपास आपको नजर दिखाई देगी। और हर मिटियोर शावर का एक पेरेंट बॉडी होती है, हर मिटियोर शावर की एक पेरेंट बॉडी होती है, जिसकी वजह से वो मिटियोर शावर होता है। तो जून बुटेट्स मिटियोर शावर जो है वो कॉमेट 7P या फिर पॉन्स विनेक नाम के कॉमेट या धूमकेतु की वजह से ये मिटियोर शावर मानी जाती है। और जितनी भी पिक्स मैंने ली हैं ये सारी स्टेलियम सॉफ्टवेयर से ले रखी हैं। और मैंने जितने भी बताएं जो हमारे होने वाले हैं, चाहे वो हमारा मार्स के साथ हो, सैटर्न के साथ हो या जुपिटर के साथ हो, वो मून के, वो सारे कंजंक्शन 7, 8, 9 ये 3 डेट्स पे हमें मिल। तो ये जितनी पिक्स है हमारी वो हमने ले रखी स्टेलियम सॉफ्टवेयर से। और ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन था फॉर जून 2020। और जो इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि जून का पूरा जो मंथ है वो एक सेलेस्टियल इवेंट के चारों तरफ घूम रहा है, जो पूरे सबकी निगाहें उस पे हैं। वो है हमारा 21 जून, जिस दिन 21 जून को हमारा जो टोटल सोलर इक्लिप्स है, एनुलर सोलर इक्लिप्स है, लखनऊ में कहते हैं जो मून है वो सन को ढक लेगा। उस पे मैंने आगे नहीं किया है। आफ्टर द कल के लेक्चर के बाद में इस पे हम लोग एक और सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सोलर इक्लिप्स कैसे उसको वॉच करें और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर सकते हैं बिना किसी एडवांस उसके, तो वो उस पर पूरा सेशन हम लोग लेंगे। थैंक यू। Yeah, thank you, sir, for such an enlightening talk. And I hope we all enjoyed the session today. And in fact, we all know now what we have to watch in the night sky in this June 2020. Let's see if we have any questions in the chat box. I would like to take them. Shall I go ahead, sir? Yes, sir. Okay, sir. Yeah. So as I can see the chat box, there is a question from Amritanshu Bajpai. He is asking, sir, is IGP Lucknow planning a trip on upcoming meteor shower post lockdown? No, Indira Gandhi Planetarium is not planning any of the outreach event in which we have to gather because there is a term known as a social distancing. So we cannot plan any social gathering, any astronomical events without social distancing.
Sir, but he is asking like we are planning to our session after the lockdown. So like if there is any After the plan. lockdown, but no, no. After the lockdown, there means after the lockdown, no one can say that the corona effect will Yeah, take perfectly. will So totally. so as I can say, like Mr. Bajpayee, like I want to conclude that sir want to say that after the lockdown, corona effect not seems to be like low. So he's saying that in the same way, like we are not planning any type of social gathering programs for like this. There is another question in the chat box by Shitish Srivastava. Is there any Android app from which we can identify the star by pointing the phone camera towards the star? I think for that purpose, there's a dedicated blog on Sky Foundation's website. There are many easy to use Android applications. And first one is a Google Sky Map. Second one is Sky Safari. Sky Star Walk is another thing. But this Google Sky Map is very handy, very easy to use. You can use it, and if you want to pay, if you want to like if you like to if you like a paid application, then you can also get a Stellarium mobile version. Otherwise, Uh, uh, Google Sky Map is good. yeah, yeah, okay. Thank you, sir. Like for giving the answers so generously. And as I can see, there are no any questions available in the chat box. Yeah. We have some questions from our social links. One of Okay, the okay, okay. questions Yeah, from Shubham, go Sumit on. Kumar Patel, who is asked, yeah, Mr. Sumit Kumar Patel from Ahmedabad asked, will all 8 planets ever line up on the same side of the sun? And the second question is also from him. Why do the outer gas giant planets rotate faster than the inner celestial planets? अगर हम हमें सारे आठों प्लैनेट सन के एक साइड होंगे भी, then we cannot able to see all of them through the naked eye. And even from the telescope we can observe only Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. After Saturn it is very difficult to with the help of telescope it is very difficult to get Uranus and Neptune. So अगर ये आठों प्लेनेट एक साइड हैं भी, मतलब ये कोई इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, बट यस इट कैन बी पॉसिबल. बट अगर ये ऐसा होता भी है तो ये नेकेड आई से तो आपको देखने से मिलता है कि वो एक साथ में आपको दिख सकेंगे. And Okay, sir. the second Shubham. question, why do Yeah. the outer gas giants planets rotate faster than the inner celestial planets? Rotates faster than the inner terrestrial planets. There are many theories about the planet birth of planets. और अगर उन थ्योरीज पे हम देखेंगे तो जितनी भी टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं, जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैवी एलिमेंट्स के प्लैनेट्स हैं, वो हमारा नियर द सेंटर वो कहते हैं मूव करते हैं, नियर द सेंटर रिवॉल्व करते हैं. और जितने भी गैसेस प्लैनेट्स हैं, जितने भी हल्के एलिमेंट्स हैं, उनसे बने हुए जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे धीरे धीरे सेंटर से दूर होते हुए दिखते हैं. और उन थ्योरीज में ही अगर हम जाएंगे तो जैसे जैसे क्योंकि वो हल्के हल्के एलिमेंट से बने हुए हैं, उनकी जो हमसे डिस्टेंस है वो दूर है. सो थ्रू द अगर इसको उस तरीके से डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकेंगे कि हाँ. और दूसरी चीज ये है कि रोटेशन पीरियड ओवर द एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू रिवॉल्यूशन, इस पे भी डिपेंड करेगा. If you permit me, can I add a few comments from my part, Sumit ji? जी जी. So actually, whoever has asked this question, I was not able to get the name. So जिन्होंने भी सवाल नो. पूछा है, तो you can just imagine that these big planets, actually it is a theory only. That is, these big planets, they could have accumulated most of their Yeah. mass from gas in the surrounding solar nebula. So you can say, as far as a theory goes, that is the gas that may have formed from the individual spinning disks, and most likely it carried a lot of angular momentum as it fell onto the outer planets, that is the gaseous planets, say Jupiter, Saturn, Uranus, and all. The cores of the outer planets.
caused them to spin faster as they proceed. And Totally then depend on angular movement. yeah. So this is actually my opinion according to your theory. And the first question is it is fantastic question, but theoretically speaking, uh, all the 8 planets you cannot see. They may seem to be on a singular line, but only thing is you have to imagine them in 2 dimension, because first we have to reduce it whether the planets can have the same heliocentric longitude or not, because in 3 dimensions they cannot line up in the same plane because their orbital planes are different slightly. सुमित जी. बस एक एक पॉइंट में इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी प्लैनेट्स को अगर हम प्लैनेट्स की बात करेंगे तो किसी भी प्लैनेट का जो रिवॉल्विंग पाथ है वो हर किसी मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी ना किसी एंगल पे झुका हुआ है, हर प्लैनेट का पाथ. क्योंकि नाइट स्काई जब भी हम नाइट स्काई को देखते हैं या नाइट स्काई को समझते हैं तो उसके लिए हम लोग एक सेलेस्टियल स्फीयर बनाते हैं. तो चाहे वो किसी भी एंगल पे क्यों ना हो प्लैनेट, वो हमें अपने नाइट स्काई में दिखता है. वो किसी ना किसी सेलेस्टियल स्फीयर पे कोई ना कोई एक पॉइंट के रूप में हमें नजर आता है. तो अगर क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए आपको 8 प्लैनेट आपको नाइट स्काई में एक साथ मिल भी गए, 8 प्लैनेट एक साथ मिल भी गए, सन के अपोजिट साइड होने का मतलब ये है कि आपको नाइट स्काई में सारे प्लैनेट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसको आप नेकेड आई से देख सकोगे, ये इम्पॉसिबल है. हाँ जी, इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि शायद जो है जो इनर प्लैनेट्स है जैसे मरकरी, वीनस और अर्थ, ये तो शायद जो है लगभग 39 सालों में जो है एक बार इनका अलाइनमेंट होता है. और अगर आप उसमें तभी मार्स, जुपिटर, सैटर्न आप जोड़ लें तो मुझको शायद ये लगता है कि कई बिलियन ईयर्स लग जाएंगे, शायद 300-400 बिलियन ईयर्स में एक बार इनका होगा अलाइनमेंट. शायद जैसे क्योंकि अगर एंटारस कभी पोल स्टार था, उसके बाद अब पोलारिस चला है, उतने साल तो लगेंगे ही लगेंगे कम से कम. जी, क्योंकि जैसे अगर इनको एक लाइन में आने के लिए हम लोग जैसे रफली कहें तो 1 डिग्री का इनके बीच में वो होना चाहिए टाइटनिंग डेफिनेशन, तो उसके लिए तो कई शायद जो है बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाने चाहिए मेरे हिसाब से. स्वप्निल एंड सुमित जी, over to Okay, you. yeah. So I hope like our participant what he want to ask definitely satisfy with your answer, and thank you Amnitanshu Bhaiya for adding your points, your point of view also. What the question asked from Mr. Sumit. So with this, I would like to before giving the formal ending, I would really like to thank to all the organizers, whether from the Sky Foundation or the EduSTEM Initiative Global, or from under the patronage of Vigyan Prasad Vipnet clubs, who keep like promoting these astronomical activities among the masses. We are keep doing such activities since the past 2 months, and we seeing that most of the people join from different parts of the country, not only the country but also from different parts of the world too. So that it means a lot to us, like the way you are like loving us, the way you are enjoying our sessions definitely give us a motivation to keep arranging such type of sessions for you as well. So for the formal ending, I would like to our co-host of the day, Mr. Shubham Sharma, who will give the formal ending of today's session. So Shubham Sharma, over to you. Thank you. थैंक यू स्वप्निल जी. अत्यधिक ज्ञानवर्धक सत्र रहा हमारे प्लेनेटेरियम लखनऊ साइंटिफिक ऑफिसर सुमित कुमार श्रीवास्तव द्वारा, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका धन्यवाद. आप सभी से आशा करता हूं कि पूरे जून रात्रि आकाश का अवलोकन आप करेंगे. मैं स्काई परिवार की तरफ से मैं शुभम शर्मा आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और विशेष धन्यवाद देता हूं आज के वक्ता जिन्होंने विशेष रूप से हमारे साथ आकर अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया. और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं अपनी कारणी को, स्काई फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं जो कि पर्दे के पीछे और हमारे साथ सभी के हम सभी के लोगों के साथ काम करते हैं, जिनकी वजह से आज का पूरा कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ. मिस्टर स्वप्निल एंड सुभान राज जी का विशेष रूप से
धन्यवाद करता हूँ। साथ ही धन्यवाद देता हूँ वेपिनेट क्लब्स, इग्नाइट माइंड, स्काई एक्ट, WLS को, इन सभी को जिन्होंने अपना सपोर्ट हमें प्रदान किया, जिससे कि हम आज का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न कर सकें। साथ ही साथ उत्कृष्ट आभार के साथ सभी श्रोतागण जिन्होंने अपनी भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हम सभी लोगों का मनोबल को बढ़ाया और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभम शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे हेल्दी और आने वाले प्रोग्राम्स के लिए स्काई चैनल पर लगातार बने रहिए। हमारे फेसबुक अकाउंट, ट्विटर, इंस्टा अकाउंट पर फॉलो करते रहिए। जल्द ही हमारे कल के 2 विशेष सत्र आयोजित होने वाले हैं, सुबह 11:30 बजे और रात्रि शाम को 7 बजे। धन्यवाद। With this, as Shubham Sharma already give his final words, so he also reminded us that there shall be 2 sessions, a very like informative and very important sessions of for our family. Like there will be a one session at 11:30 on the cyber security by Mr. Bharat Bhushal, and in the evening time there will be a session on annular solar eclipse by Bharat Adur sir. He's a very eminent scientist, or not only in India, also in the world. So kindly grace the occasion, and for getting the e-certificates, there is a feedback form in the chat box that Sky Foundation continuously posting us. Please fill the form so that we will generate your e-certificate as soon as possible. So with this, I want to end this session. Thank you for joining us. Thank you.